कोहली सर स्टार्ट करें? या श्योर, प्लीज कंटिन्यू। मैम स्टार्ट कीजिए। Okay. Hello everyone from SIRT Sage Group and from IIC Cell Council Cell. I welcome all the participants and all the experts. We have 6 experts. They have their own startups. I will explain everyone. But before we start the our session, I would like to start our college video so that we can introduce our college in front all of you. So let's start our session. First of all, I will introduce all our experts. The first expert we have Mr. Mahendra Panchal. Mr. Mahendra Panchal belongs to FinTech sector. His company Bima Express are working towards improving the experience of customers when they are filing for health insurance claims. They are doing this by implementing a platform which will integrate the entire insurance ecosystem by hospital, health insurance companies, and others. The second expert we have are Mr. Ankit Yadav. Mr. Ankit Yadav belongs to e-commerce, textile and retail sector. His company
My Earth Garment Private Limited is working with the aim to provide end-to-end solution to the garment manufacturing industries. They cater both business to business and business to client or their portal, along with providing services such as customization, listing of all the lines of fabric, etc. The third expert we have, Ms. Shivani Jain. Her sector is tracking solutions. Her company, MPIPS, are a solution provider company who deliver holistic, comprehensive, and relevant solutions. Their GPS vehicle tracking device offer worldwide GPS satellite coverage with nationwide customer sales and service networks. Globally, check your vehicle's uses and recover it efficiently in case of theft. Our third expert is Mr. Rajesh Ranjan. Mr. Rajesh Ranjan belongs to aggregation platform. His company, Wireflow Technologies, is developing Book Adda, a platform that will help you search latest and top-selling novels according to your taste and preference. They are trying to create a place where you can compare stories, reviews, price, and aggregated book reviews across top-selling books. And our Rajesh Ranjan is also our alumni, a pride alumni. Our fourth expert is Mr. Ankit Thakur. His sector is automobile and e-commerce. His company, Yolmade, started with the idea of bringing the automotive industry to an economic platform to serve people to search for services such as nearby verified mechanic shops anywhere at any time. And our last sixth expert is Mr. Shubham Sharma. Shubham Sharma belongs to service aggregators. His company, Vira, is a professional networking platform with an online and local freelancing marketplace. Through their networking platforms, clients or professionals can post articles, ask and answer questions, interact personally with each other to do work in areas such as business, design, health, IT, lifestyle marketing, and many more. I welcome all our experts. They all are belongs to B-Nest startup areas. So, shall we start, sir? Yes, ma'am. Rajesh, sir, you can start your presentation. मैम 1 मिनट होल्ड करना. जी जी जी. Hi everyone, good afternoon. You are able to see the PPT and hear us? Anyone can confirm? Nitiman, can you confirm you are able to see the presentation? No, your Not screen is visible. not sharing yet now.
paused उसको होगा Just a second. resume share Are you able to see now? there's some issue वो full screen में share नहीं हो रहा छोटा कर No. Just a second. फिर से share कर share और एक्स्ट्रा स्क्रीन भी शेयर कर दूं हां सब वही Your screen sharing is paused. उधर से है क्या उधर से तो नहीं है नहीं यार. Okay, now you can share. Just try once again. No, still we cannot. Sir, behave allowed from here. Full screen में नहीं बना रहा. Full screen share भी नहीं आ रहा. Stop कर नीचे. नहीं click नहीं. Stop कर. Share. Host can change. Maybe changes. बंद कर दें और तो कोई करना नहीं मतलब मैं भी हो जाएगा Share नहीं आ रहा. now it is getting paused again there is some So guys, there are, ma'am, कुछ issue है screen share से. So I think हाँ, आप एक काम कीजिए, मुझे सेंड कर दीजिए पीपीटी, मैं यहाँ से शेयर कर देती हूँ. मैम मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वो फिर से कर दे रहा हूँ आपको शेयर बोल जाओ काम के मेल होगा. Okay. If you have that, then you can share, please. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. सर राजेश सर को होस्ट बना दीजिए शेयर हो जाएगी आप होस्ट नहीं है इसलिए शायद नहीं हो रही होगी ही इज अ को होस्ट आप शेयर करके देखिए सर अब हो जाएगी शायद Yes, sir. Yes. So now it is visible. So we thought कि as an introduction to this session, probably students from all the years are there. सारे सभी first to fourth year वाले students हैं. So it would be good to give a perspective as to start from what is startup, and then from there we can move ahead and build it up. So we will take at least 15 minutes, 20 minutes, and probably to just run इस PPT को complete करने के लिए. उसके बाद we will open the session for question and answers. So what everyone can do can put their questions in the text field, message field, and then we can try and answer some of those. Is it okay? Yes, sir. Right. Yeah. So we'll just move ahead. ठीक है ठीक है Yeah. So click करेंगे. So what is a startup? A startup are basically a company which is in a preliminary stage. When we say startup is basically just started and they are in terms of operations, and it is trying to solve for a problem by developing a product and service for a market. So basically what we are trying to say here is कि हमारा जो एक स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि एक कंपनी जो अभी अभी चालू हुई है, जो एक प्रॉब्लम है एग्जिस्ट करती है मार्केट में,
उसके लिए एक या तो प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस बना रही है और उसको मार्केट में लेके जा रही है एक वायबल प्रपोजिशन की तरह, जहां पे लोग उसको खरीदने के लिए अवेलेबल है। सो ये एक स्टार्टअप की बेसिक डेफिनेशन होती है। What startup means is, as we pointed out in the first slide, हम एक स्टार्टअप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव प्रोसेस अप्लाई करती है, उसको मार्केट में डिप्लॉय करती है फॉर कमर्शियलाइज फॉर मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मींस जब वो मार्केट में लेके जाती है, उसके लिए लोग, मार्केट इज अवेलेबल हु वांट्स टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, एंड देन प्रोसेस, उसके जो प्रोसेस और सर्विसेज हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहते हैं एंड कैन बी ड्रिवन थ्रू एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट सो बेसिकली आपने एक यूनिक आइडिया बनाया, इट्स अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसके लिए आप एक आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असाइन करोगे, उसके लिए फाइल करोगे और आपका राइट्स हो जाएगा वो। What does startup stands for? Startups basically are a new business, is a combination of new business and innovation. Then it's driven through technology and it's driven through a passion of a founding team. The passion of a founding team is one of the most important ingredients in this overall landscape. तो वो एक नई बिजनेस चालू कर रहा है, इनोवेटिव आइडिया है एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एंड इट्स ड्रिवन बाय अ पैशन ऑफ इंडिविजुअल्स। 5 essential things for a success of startup is idea, team। आइडिया क्या है, बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहा है और किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। टीम, कौन लोग हैं जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। बिजनेस मॉडल मीन्स कैसे वो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, उसके लिए आप उसे कैसे मार्केट में बेचोगे ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो। फंडिंग, आप एक लेवल के बाद उसको, उस आइडिया को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए कैसे उसे फंड कर रहे हो। आप अपने खुद के फंड्स लगा रहे हो या आपके पास फैमिली एंड फ्रेंड्स के फंड है या आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जो आपके आइडियाज में है। सो फंडिंग एंड टाइमिंग बेसिकली इज विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल यू आर। बेसिकली आप मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका आईपीओ वगैरह निकल गया है तो उनको आप जनरली स्टार्टअप्स नहीं बोलते हो, उसके पहले वाली जो भी होती है उनको आप स्टार्टअप्स बोलते हो। So before you start, what do you need to do to create your own startup? For creating your own startup, you need to have basically you should have an idea. आइडिया के बाद आपको टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि किसको आप बेचने वाले हो, वो आइडिया में आप कैसे बेचोगे, उस स्पेस में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ता है आपको। आप उस जो आपका आइडिया है वो आप बिजनेसेस को बेचोगे या आप इंडिविजुअल्स को बेचोगे। आप अगर जब बिजनेसेस को बेचते हो तो उसे आप बोलते हो बिजनेस टू बिजनेस प्रपोजिशन, यानी आपका एक बिजनेस है, आप जिनको बेच रहे हो आपके कस्टमर्स भी बिजनेसेस हैं, तो आप बोलोगे बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके कस्टमर्स इंडिविजुअल्स हैं तो उनको बोलोगे आप बिजनेस टू कस्टमर्स। आपके बिजनेस की साइज क्या है, यानी आपका मार्केट की साइज क्या है, कितना आपका मार्केट है, टोटल मार्केट साइज क्या है, कितने लोगों को आप बेच सकते हो, कितने लोग अवेलेबल है खरीदने के लिए। एंड उसमें so basically business size and size of users is a combination which is there. Yeah, so life cycle ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे आपको समझना चाहिए। इस आप आइडिया लेते हो, उसको आप या तो खुद इंडस्ट्री में काम किए हो 15-20 साल, उसके बाद आपको पता है कि आपका आइडिया कौन सा चालू होगा, या आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, प्रॉब्ली एग्रीकल्चर या आप ऑटोमोबाइल्स या किसी में भी आप जा रहे हो, तो आपको एक मेंटर या गाइडेंस लगेगा। सो वो आपको मेंटर एक गाइडेंस लेना चाहिए। उसके बाद आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, फिर आप कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं। जब आपके पास एक साइजेबल मार्केट हो जाता है, जब आप शो करते हैं कि यार मेरे पास आज की डेट में इतने कस्टमर्स हैं, देन ऑटोमेटिकली एंड यू वांट टू स्केल, यानी अब मुझे 100 कस्टमर मैंने एक्वायर कर लिए हैं, 1000 कस्टमर मैंने एक्वायर कर लिए हैं, उसको मुझे 1 लाख कस्टमर करना है या मेरे को 10 लाख कस्टमर करना है। Then you make a business plan and start approaching investors. And उसके बाद आपका जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं उसके बाद आप स्केल करते हैं और आपकी स्टार्टअप जर्नी में देन फर्दर राउंड्स ऑफ फंडिंग आती है,
सीड फंडिंग, सीरी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और उसके बाद आप आईपीओ लेके आते हैं. सो बेसिकली हर एक स्टार्टअप का एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आऊं. सो दैट्स व्हेन यू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. एक बेसिक क्वेरी है कि मैं दुकान भी चला रहा हूँ, मैं स्टार्टअप्स भी चला रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप दोनों में पैसे कमा सकते हैं और लार्ज स्केल पे कमा सकते हैं. सो इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन इज अ स्टार्टअप वर्सेस बट द अप्रोच विच जो बेसिकली डिफरेंस आता है वो आता है अप्रोच में, कि आप एक बिजनेसमैन लिमिटेड अप्रोच के साथ काम करता है. एक एंटरप्रेन्योर का जो बेसिक अप्रोच रहता है वो रिस्क टेकिंग रहता है. वो चाहता है कि मेरा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े. उसके लिए वो जो ट्रेड्स रहते हैं वो रहते हैं क्विक लर्नर, स्मार्ट वर्क करता है, वो डिसीजनिंग तेजी से करता है, उसका जो रिस्क एपेटाइट है वो ज्यादा लेता है, यानी वो पैसा इन्वेस्ट करने में ज्यादा बिलीव करता है ताकि उसका रिटर्न्स भी ज्यादा आए. और उसका जो आइडिया रहता है वो ट्रेडिशनल नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा इनोवेशन रहता है, या इट्स एन इनोवेटिव आइडिया थ्रू विच he is approaching the market. So that's the basic difference जो लोग पूछते हैं कि businessmen और startups में क्या difference रहता है. So I think it's only about attitude and risk taking ability. Success mantra for startups, you need to start with good people to make some basically customers who you need to acquire few customers who actually want it and want to pay for it, and to spend as little money as possible, because स्टार्टअप्स के पास सबसे बड़ी जो इशू होती है वो फंडिंग का इशू होता है. तो सबके पास फंड्स कम रहते हैं, तो आप जितना अच्छे से अपना फंड्स मैनेज करोगे उतना आपके सक्सेस के क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं. थैंक यू. एंड ये हमारे 15 मिनट्स खत्म होते हैं. आप प्लीज अपने क्वेश्चंस टेक्स्ट कर सकते हैं, वी आर ओपन फॉर आंसर्स. स्टॉप शेयरिंग. थैंक यू सर. आप स्टूडेंट्स अगर कोई अपना देना चाहते हैं टेक्स्ट में, चैट में लिख सकते हैं जो उनकी क्वेरी है. तो सर है यहाँ आपकी क्वेरी को आंसर करने के लिए. Yes, Ashish. Please, you can ask a question. One student is there, he asked a question. Please ask a question. हाँ यस सर. सर आप लोग को स्टार्टअप करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी? बेटा देखो, स्टार्टअप का पहला मतलब यही है कि प्रॉब्लम्स, मतलब आप स्टार्टअप इसलिए हो क्योंकि आपने कोई ना कोई एक प्रॉब्लम देखी है और वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, और वो प्रॉब्लम आप अपने कस्टमर्स की, यूजर्स की सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आपका राइट आइडिया. क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल को साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि हमने जो आइडिया सोचा है, जो बिजनेस मॉडल सोचा है, वो दुनिया में यूनिक है, हम ही पहली बार कर रहे हैं. तो ये मान के चलना कि 99.9% आपने पहली बार नहीं सोचा है, दुनिया में कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या तो बहुत साल पहले या अभी राइट नाउ आपके जैसा सेम आइडिया सोच के बैठा है और वो भी सेम मेहनत कर रहा है. तो इट्स लाइक कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो, आप टीम को हैंडल कैसे कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को सर्विस क्या दे रहे हो. ठीक है, कई लोगों को ये लगता है कि फंडिंग, वो जैसी आइडिया सोच लेंगे तुरंत उनको बैंक से फंडिंग मिल जाएगी या बहुत सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे. तो अभी ये जो सिचुएशन थी, ये 2009-10 तक तो आइडियल थी कि इंडिया में सिर्फ आइडिया के बेसिस पे फंडिंग्स मिल जाती थी. बट राइट नाउ ये सिचुएशन हो गया है कि आप जब तक ट्रैक्शन दैट मींस कि आपके पास जब तक कस्टमर पे नहीं कर रहा है, आप हर महीने कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, तब तक कोई इन्वेस्टर आपके साथ इंटरेस्ट नहीं लेने वाला. मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आपको ये बोलेंगे कि आपको सीड फंडिंग, जो इनिशियल फंडिंग आपको चाहिए, वो आप अपनी फैमिली से लीजिए, अपने फ्रेंड से लीजिए, अपने किसी नोन से लीजिए. आजकल कॉलेजेस में भी इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो गए हैं, बट अभी भी उन लोगों को फंडिंग नहीं मिली है. वो एक इशू अभी लगभग सभी जगह है. तो फंडिंग तो इनिशियली आपको अरेंज करनी पड़ेगी, फिर आइडिया बनाने के बाद, फंडिंग मिलने के बाद तीसरा आपके साथ इशू आने वाला है, वो इशू आने वाला है कि सही टीम कलेक्ट करना, कि अब हम किन लोगों को रखें.
क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को टीम हायर कर लिया और हर महीने आप अपनी जेब से सैलरी दे रहे हो और रिटर्न या आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो वो चीज भी आपको देखना है। एंड द फोर्थ वन चीज कि आपका नीश मार्केट क्या है, कि मतलब आपको कस्टमर सिर्फ भोपाल में दे रहा है या आज से 5 साल 10 साल बाद आपका क्या पोजीशन बनने वाला है, आप हमेशा 10 साल तक भोपाल में ही काम कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज्यादा एमपी में जा सके, क्योंकि आपको मिनिमम से मिनिमम पैन इंडिया के हिसाब से सोचना है, आपका यूजर उस हिसाब से सोच के चलना चाहिए कि इतना हम यूजर खड़ा कर देंगे। तो डेमोग्राफिक आपको चीजें पता होना चाहिए कि कितना पॉपुलेशन है, कितने यूजर है, क्या उनका पेइंग स्केल है, कि कितना वो पे कर सकते हैं, उनका पॉकेट साइज क्या है, तो ये सारी चीजें आपको मिनिमम सोच के चलनी पड़ेगी। आपको क्लियर हुआ या कुछ और? ऑल ऑफ यू चैट इनेबल्ड हो गया है, अब आप लोग चैट पे लिख सकते हैं, पहले डिसेबल्ड था अब इनेबल्ड हो गया है, या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Professor Rajiv Saxena sir is there. Sir, you want to ask some question, please? सर एक क्वेश्चन था मेरा। Please second. आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशन कि इस फोरम पे आए आप लोग, थैंक यू। और क्वेश्चन कि आप लोग कर रहे हो, स्टार्टअप चला रहे हो, सारी चीजें हैं, एमपी गवर्नमेंट या फिर कहना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिल रही है मतलब स्टार्टअप्स को? सर देखिए, मैं इस पे ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलूंगा, मगर मैं फ्रैंकली बताऊंगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे ना खुद की, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। देखिए, जब आप एक अच्छा स्टार्टअप बन जाएंगे, देश भी आ जाएगा, एमपी गवर्नमेंट भी आ जाएगी, सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे। बट इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, पहले तो थे, आज से 2014-12 तक इन्होंने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में देते थे। ऐसा मॉडिफाई करता हूँ जी कि मान लीजिए आपने स्टार्टअप चालू कर दिया और एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हो, जी ठीक है ना, ऐसा लग रहा है तो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीजें हैं कि जी आपके पास ये चीज है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, और आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कुछ टर्नओवर आपने बना लिया है, जी उसके बाद अगर जी क्या हेल्प सर 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो बेसिकली जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो है इन फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, कि आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे DPIT सर्टिफिकेशन होता है, वो सब जो होता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, जहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन्स, जहाँ पे आपको ग्रांट्स अवेलेबल होती हैं। तो दिस इज एट अ नेशनल लेवल, तो वो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रांट्स जीत सकते हैं, और उस हिसाब से आप या फिर प्राइवेट एजेंसीज की रहती है ग्रांट्स? सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। ये ग्रांट्स जो है प्राइवेट की रहती है या फिर गवर्नमेंट की रहती हैं? सो इट्स अ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे कंपटीशन जनरली कंपनीज होस्ट करती हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। जैसे आज आपको अगर किसी बैंक का कोई स्टार्टअप है, बैंक को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, या आपके केस में अगर आपको एजुकेशन डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, तो आपने वहाँ पे कुछ यूज केसेस डाल के बोल दिया कि जो यूज केसेस बेस्ट, जो कंपनी इन यूज केसेस को बेस्ट सॉल्व करेगी उसको मैं पैसे दूंगा। सो दैट्स वेयर दिस ग्रांट्स कम इन। तो एक प्राइवेट कंपनी होती है जो आती है अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके, और जनरली वो सॉल्व करती है। सेकेंड थिंग रहती है, जब आपने बोला कि कोई ग्रांट्स मिलती हैं क्या, जो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली देते हैं। सो गवर्नमेंट की, अगर आप किसी सेक्टर से काम कर रहे हैं जो बेसिकली सोशल वेलफेयर की साइड है, सो हर स्टेट की एक पॉलिसी रहती है। उस स्टेट की पॉलिसी के अंदर देयर आर आइडेंटिफाइड सेक्टर्स। सो इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट, या जैसे हमारे आई कैन कोट एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आए थे यहाँ पे MSME वाले, MP में they are also trying to identify 3-4 areas which are focus segment for MP, जैसे हो गया वाटर ट्रीटमेंट, हो गया एग्रीकल्चर, हो गया आंगनवाड़ी हो गया। These are areas where they are actually looking as a focus area। तो आप अगर उस एरिया में फोकस्ड हैं, so then the government will also engage with you in that form, कि आप अगर उस एरिया में कुछ नया इनोवेटिव करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट विल कम इनटू पिक्चर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की उस एरिया पे फोकस है कि नहीं है, एट अ स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट अ नेशनल लेवल।
सो वो भी होता है। थर्ड थिंग जो आती है उसमें आता है टैक्सेशन रिलैक्सेशन, टैक्स रिलैक्सेशन आता है, इनकम टैक्स रिलैक्सेशन आता है। सो बट उसके लिए थोड़े से प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस स्ट्रिंजेंट है। यू हैव टू हैव 3 years और 2 years के थोड़ा वो बैलेंस शीट्स वगैरह होनी पड़ती हैं। तो वो तीनों चारों चीजें मिलके इफ यू आर इन दैट परव्यू तो आपको टैक्स रिलीफ मिलता है फॉर 3 years. So that's again is a initiative which is out there. So there are multiple things which are there. Then CGTSE, CGT MSME, उन सब में कुछ loans की grants हैं, कुछ मुद्रा loans हैं जिस पे आपको non collateral based loans मिलते हैं, but that's limited for like 10 lakhs for service sector, 25 lakhs for manufacturing sector. All that grants are available, but it all depends on कि आप कहाँ से किसे approach कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, but the grants are available, things are available. People will have to focus कि उनका idea क्या है, उस हिसाब से government से भी available रहता है. There are other people also who are out there who can give the grants. So there are multiple avenues, sir. Even though हमारे यहाँ के 2 स्टार्टअप्स ने लाइक एक डिफेंस मिनिस्टर से एक ने लिया है, करीबन 1.5 करोड़ का ग्रांट मिला हुआ है उनको, Star Group. And again one of his startup is कबाड़ी वाला जिनको 1 करोड़ का ग्रांट मिला हुआ है और ये लास्ट 1 year में ही हुआ है। तो इट्स लाइक कि ग्रांट्स अवेलेबल है। थैंक यू सर। सर एक स्टूडेंट है अतुल कुमार कुशवाहा, उसका एक क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि एक टीम है पर अर्निंग नहीं हो पा रही है जिस कारण से टीम टूट रही है, तो इसको कैसे मैनेज करें? ये चैट में क्वेश्चन आया सर। सो या बहुत लेजिट क्वेश्चन है ये। टीम है, नीश है, बट अर्निंग नहीं हो पा रही है जिस वजह से टीम टूट रही है। सो हाउ डू वी मैनेज दैट थिंग? तो सबसे पहली बात, अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपकी जो टीम होती है ना, उसके साथ आपका एक कॉमन गोल होना चाहिए। It is not, startup journey is not just about money. That is the difference. आज की डेट में हम स्टार्टअप हैं, हमारे पास भी we initially we never had money जब हम we were working on innovation and ideas, तब जब हम कुछ चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं तब ट्रैक्शन नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देंगे? सो उस केस में बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हायरिंग इंटर्न्स। आप किसी को कोई स्किल सिखाओ और उससे उसका स्किल उसी फॉर्म में आप उससे काम लो, तो इसमें आपको उनको पे नहीं करना पड़ेगा, वो भी कुछ नया सीखेंगे और आपको भी आपका काम होके मिलेगा। सो हायरिंग इंटर्न्स इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि हैव अ कॉमन गोल। आज की डेट में अगर मैं एरोप्लेन के बारे में नहीं सोचूंगी तो मे बी माय असिस्टेंट कैन नॉट थिंक ऑफ एन ऑडी। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो हैव अ कॉमन गोल इन द टीम। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अलीबाबा के बारे में सुना होगा, मिस्टर जैकमा। he actually I think 8 साल उन्होंने अपनी कंपनी बिना किसी रेवेन्यू के चलाई थी, लेकिन 8 साल में जो उनके साथ थे वो आज कहाँ पर होंगे हम सोच सकते हैं। बिकॉज अलीबाबा का जब अलीबाबा बिकेम अलीबाबा, तो उन्हीं जो 8 साल लोगों ने जो काम किया था बिना पैसों के, वो लोग आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे मे बी इन द कंपनी। सो विद स्टार्टअप्स ना, आपको ये अपनी टीम को आपको अपनी टीम के दिमाग में चीज डालनी चाहिए कि एज अ स्टार्टअप अगर आप ग्रो करते हो तो आप कहाँ जा सकते हो। सो दैट कॉमन गोल इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वो आपको क्रिएट करना होगा अपनी टीम के अंदर, वो मोटिवेशन लानी पड़ेगी, और वो इट इज नॉट अ वन डे जॉब, आपको हर दिन करना पड़ेगा। बिकॉज बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद मोटिवेटेड हो, टीम को मोटिवेट करोगे, इम्पैक्ट मीटिंग्स लोगे, देन दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो during having a startup is not just about money, it's about common dreams and goals. So आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, I feel. Am I clear? Yes, thank you ma'am, thank you so much. Just to add to that, sure. It's startup journey is not a day's journey. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप ये सोच के नहीं आइए कि 1 साल में मेरा स्टार्टअप बिलियंस कमा लेगा। कोई नहीं होता है, किसी को नहीं मिलता है। So you have to be here for a long haul. आपको कम से कम 5 से 7 साल का हॉल लेके आना पड़ता है, जब आप एक्चुअल में प्रोबेबली अपनी सैलरी उस लेवल की निकाल पाओगे जहां आप सब्सटेंशियल लाइफस्टाइल जी सकते। सो अगर यू हैव टू हैव योर कन्विक्शन इन द आइडिया, और आइडिया के साथ में आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए सस्टेन करने के लिए।
तो बेस्ट वे इज टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में आपके पास फ्रॉम डे वन अगर रेवेन्यू आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं होगी, पर रेवेन्यू अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली दीज यू शुड हैव फंड्स, यू शुड हैव मनी टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गेस्ट हॉल। तो वो सोच के आइए, स्टार्टअप इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जर्नी, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल ऑन एवरी डे, on every day. It is not going to be, as Shivangi was saying, it is not going to be कि मैं 3 महीने में बिल्कुल क्रैक कर दूंगा या 10 महीने में बिल्कुल क्रैक कर दूंगा. It has to be a 3 to 4 years to 7 years journey जो तुम लोगे, and then you will be able to crack it in some. I have to add something. सबको जब भी लगता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को स्टार्टअप चालू करना है या दिस इज द आइडिया व्हिच आई कैन वर्क ऑन, या ये प्रॉब्लम है इस मार्केट की, ठीक है. द थिंग इज कि हम वो चीज सबसे पहले पेपर में लिखते हैं, तो कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है वो रिसर्च तक नहीं करते, सो दे जस्ट डू इट इन द पेपर, ठीक है. दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है पेपर में, अकाउंट्स के नंबर्स हम पूरे टैली करते हैं, 1000 करोड़ में भी नंबर्स आ जाते हैं, बट इट्स नॉट अ रियल थिंग. द थिंग इज जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो, पैसे लगा देते हो, टीम तैयार कर लेते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपने जो एक्सपेक्ट किया होता है तो वो चीज रियलिटी में नहीं होती. रियलिटी कुछ अलग ही फेस शो कर देती है आपको. तो वो भी एक एक्सपेक्ट है जो कि आपको वहाँ पे भी सोचना चाहिए, और जो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट थिंक अबाउट इट. ऑल्सो जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको ये डे वन से पता होना चाहिए कि आप कितना कैश बर्न कर रहे हैं या आपके पास कितने फंड्स हैं. यू ऑल्सो हैव टू बी प्रॉपर, आपको अपनी बुक्स भी बहुत प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ेगी. अगर आपकी बुक्स मैनेज नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है. सो दैट्स इट. ये जो क्वेश्चन आया है ये अतुल कुमार कुशवाहा इज आस्किंग कि अभी इनके पास प्लेसमेंट भी है और इनका खुद का एक स्टार्टअप भी है, और भी एट द सेम टाइम अपने आप को और टीम को मैनेज भी करना है. सो एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हेल्प कर सके सिचुएशन में. मैं ये समझना चाहती हूँ अतुल कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, नौकरी या बिजनेस? बिकॉज अगर अतुल जो नौकरी है वो बहुत ही अलग फील्ड है एंड बिजनेस टोटली डिफरेंट. और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो फिर मैं उस हिसाब से इस चीज को आंसर करूं. कैन यू हेल्प मी विद योर क्वेरी अतुल? Are you confused between going for a job and having a startup? You can type yes if that is the case. Yes, confusion. All right. So Atul, बहुत valid confusion है, बहुत valid confusion है. सबके साथ हुआ होगा. I'm sure. I तो have worked in a company. मैं नौकरी करने के बाद मैंने यहाँ पर I think महेंद्र भी ऐसे ही हैं जिन्होंने चालू किया था ऐसे. But I feel is आपका गोल क्या है यार, फाइनली करना क्या चाहते हो लाइफ में? एक पेपर पेन लो, लिखो 10 साल बाद अपनी जिंदगी में क्या देखते हो, 10 साल बाद अपनी लाइफ को व्हाट डू यू इमेजिन, राइट दोस थिंग्स डाउन. उसके अकॉर्डिंगली यू ऑलवेज हैव टू रिवर्स इंजीनियर थिंग्स. हम कभी आज से डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें जो चाहिए उससे हम बैकवर्ड सोच सकते हैं कि यहाँ तक मैं कैसे आऊंगा. फॉर एग्जाम्पल इन 10 years यू वांट टू अर्न 1 CR. 10 साल में जितने दिन होते हैं ना उसको डिवाइड कर दो, उतना पैसा कैसे कमा पाओगे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं. और अतुल एक और बात, अगर आप एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो, सो मेरा ऐसा सजेशन है, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, गो फॉर द प्लेसमेंट फर्स्ट. इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग समवेयर एल्स यू विल डू अ बेटर स्टार्टअप. जैसे कि मैंने बोला मैच्योर कंपनीज होती है. द रीजन दे आर मैच्योर इज बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वर्कड इन अदर कंपनीज एंड दे हैव द नो हाउ. आप एज ए एम्प्लॉय अगर काम करते हो ना तो आप किसी अपने एम्प्लॉय का भी माइंडसेट समझोगे, वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता. There are lot of things you learn while you are working for someone else. हाँ, तो आप उनका क्या एक hello sir, your voice is not audible. Mr. Dinesh, आपकी voice is not audible. Can you please repeat? I think you can continue. Yeah. So I think Atul, अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो मुझे लगता है कि 2-3 साल नौकरी करो. जब नौकरी करोगे, इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा. यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, यू विल लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं? लोगों की प्रॉब्लम्स में. जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स आपको जब आप एक्चुअली स्टार्टअप करना है, यानी आज से अपना पैसा लगा देना चीजों पे, या फिर फंडिंग डे वन से नहीं मिलती है. यू हैव टू बी बूटस्ट्रैप्ड राइट नाउ. सो
right now what I feel is कि if you want to gain some professional experience, work in a company, earn some money, have some backup, then start your own company. I mean that's what I feel. I think एक ओपिनियन जो ये है कि एक तो पैसे होने चाहिए ऑब्वियसली, सेकंड चीज इज मेंटरशिप होनी चाहिए आपके पास. आज की डेट में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, सेकंड चीज जो आती है वो आती है कोई आपके पास ऐसा पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसके पास आप जाके बात कर सके और जो आपको गाइड कर सके इन सब चीजों के लिए. So I don't know, I am not sure whether you have a mentor or not, but guys, you can reach out to us in Venus if you need mentorship, if you need guidance. अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि over the meeting, I don't know your idea, I don't know your status in those forms. अगर मैं तुम्हें कुछ भी गाइड करूँगा, it will not be in complete. अगर तुम्हें लग रहा है कि you need further discussion, further guidance, please approach us in Venus. We are here. We can understand it better and then give you a right advice as to whether you should go for placements or not, or whether you should join or not, is all on that. So let's take it up like that. Thank you sir. Sir, एक और स्टूडेंट है अविनाश कुमार त्रिवेदी, उसका एक क्वेश्चन है कि आइडिया तो है बट टीम नहीं है. अनुराग, पहले अनुराग का हुआ ना, अनुराग तेरा अविनाश. Yes, yes. अनुराग का भी है. What decision making में problem आ कुछ इसको एक कवर अप करता हूँ शुरू से, कि जैसे आई वाज सिलेक्टेड इन 2 गवर्नमेंट जॉब्स, कि मैं 2 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ, बट मुझे जॉब नहीं करनी थी, मगर मुझे स्टार्टअप्स के आइडिया चाहिए थे. मुझे चाहिए था कि मुझे बिजनेस करना है. तो मैंने क्या किया, मैं पहले इंडियन जो स्टार्टअप चल रहे थे मैं उनके यहाँ ज्वाइन हो गया. मैं अलग अलग कंपनीज में जाके काम किया, किसी कंपनी में 2 महीने काम किया, किसी कंपनी में 6 महीने काम किया. मैंने सीखा कि एक्चुअली में ये मार्केट कैसे रन होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होती है, चीजें कैसे आगे हैंडल करना है, या एक पैसा, मतलब जब द बिगेस्ट थिंग कि जब आपके हाथ में पैसा आ रहा होता है और आप उसको रोटेट कर रहे होते हो, आप लोगों को पे कर रहे होते हो, तो वो सब मैनेज कैसे करते हैं, क्लाइंट्स को कैसे, क्लाइंट बिहेवियर कैसे समझते हैं, क्लाइंट का कन्वर्जन कैसे करते हैं. तो ये सब ना करने के लिए या तो आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करिए, आप 6 महीने साल भर बिल्कुल जाके ना बिंदास होके बोलिए कि हमको यहाँ आए हैं, हम यहाँ क्यों, क्योंकि हमको आगे चल के अपना स्टार्टअप खोलना है. और जो स्टार्टअप्स होते हैं ना बहुत ओपन माइंडेड से आपको लेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको अपने यहाँ रखेंगे, चीजें समझाएंगे कि आप कैसे कर सकते हो. अगर आपको इस पार्ट पे नहीं जाना है, आपको डे 1 से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीनस जैसे इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो. आप ऐसे किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी. वो कम्युनिटी क्या होगी, वो कम्युनिटी होगी स्टार्टअप्स की, वो कम्युनिटी होगी जो पैन इंडिया के स्टार्टअप्स को आपको कनेक्ट करेगी, पैन इंडिया के मेंटर्स को आपको कनेक्ट करेगी. तो एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है. मान लीजिए कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, कंपनी कैसे रन करनी है, या आपका आइडिया कितना चलेगा नहीं चलेगा, किस स्टाफ उसका वैल्यूएशन कैसे आएगा. तो ये सब करने के लिए एक आपको कम्युनिटी कहीं ना कहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी. हाँ, बट गलती ये मत करिएगा कि किसी नॉर्मल रेगुलर बिजनेसमैन के यहाँ कनेक्ट हो जाएं. जैसे भोपाल में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे प्राउड बिजनेस वो रन कर रहे हैं, बट उनके यहाँ आपको स्टार्टअप वाला फीलिंग नहीं आएगा, उनके यहाँ आपको स्टार्टअप वाली चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल देसी तरीके वाला बिजनेस रन कर रहे हैं, भले ही उनके हजारों करोड़ के टर्नओवर्स होंगे. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगी कि आपको कहाँ जाके सही नॉलेज मिलेगा. इनका पॉइंट है कि आइडिया ठीक होगा या नहीं. आइडिया सब अच्छे होते हैं, आइडिया कहीं, किसी भी आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बस आपको ये देखना है कि आपका आइडिया आफ्टर 5 to 10 ईयर इट विल बी $1 billion आइडिया, क्योंकि बिना $1 billion के ना आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, आपको मार्केट की चीजें नहीं मिलेगी. तो आपका आइडिया क्या पैन इंडिया फैल सकता है, क्या उसमें $1 billion कस्टमर रेज हो सकता है कि हमको इतना सारा रेवेन्यू मिले, हम पैन वर्ल्ड जा सकें. मिनिमम आपको ये सब तो सोच के चलना पड़ेगा. And also the execution of the idea. I mean, जैसे कि अभी अंकित ने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके दिमाग में एक आइडिया आता है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आइडिया आता है. तो I have read a psychology paper जिस पे लिखा हुआ था कि एक आइडिया एक बार में मिनिमम 52 लोगों के दिमाग में आता है at any given point of time. That is being derived by a psychologist. तो अगर 52 लोगों के 52 लोगों के दिमाग में अगर एक आइडिया एक टाइम पे आ रहा है, तो उन लोगों में से जो उसको बेटर एग्जीक्यूट कर पाए. इट इज ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूशन. अगर आपने सोचा आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आप उससे यू कैन एक्चुअली अर्न, बट आपने उसको एग्जीक्यूट ही ठीक से नहीं करा, देयर इज
नो ऑपरेशन, देयर इज नो वर्किंग, उसकी अच्छी से वर्किंग नहीं करी, सो इट डजंट मेक सेंस, उसका कोई फायदा नहीं है। See, I think आइडिया, रैंडम आइडिया से बेटर आप अगर मार्केट की प्रॉब्लम जो आपने पर्सनली फेस की हो कि कोई ये प्रॉब्लम मार्केट में है, मुझे फील हो रही है, मेरे किसी फ्रेंड, मेरे रिलेटिव्स को फील हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते अगर आप कोई आइडिया बनाएंगे और उसमें आप 3 मंथ 6 मंथ वर्क करिए, उसको थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, उसी बीच अब जो इनका प्रॉब्लम था कि कैसे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको बेस्ट बनाया जाए, तो उस टाइम पे आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो आपके आइडिया में हेल्प करेंगे। एंड जितना जल्दी हो सके आप उसको मार्केट में लॉन्च करिए। अराउंड 1000 to 2000 कस्टमर्स में आपको उस आइडिया के फीडबैक्स मिल जाते हैं कि वो चलने वाला है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज कि देखो दुनिया ना बहुत जल्दी चेंज हो रही है और हम इसी के लिए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो अगर आज मैं एक आइडिया लेके आऊंगा कि मैं कैमरे की रील बनाऊंगा, वो चीज वो टाइम अप गया, तो वो आइडिया मार्केट में सही बैठेगा कि नहीं, इसलिए पॉइंट था कि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सही टाइम में वो आइडिया चलेगा या नहीं, स्केलेबल है कि नहीं, वो आगे कितना ज्यादा चल सकता है। तो आई थिंक बेटर ये कि आप अपने आइडिया को जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास लेके जाइए। उनके फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के नहीं होते, जो कस्टमर हमें नहीं जानते, उनके फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट, आप वो लीजिए। और एक और प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे आइडिया को ना हम अपने बच्चे की तरह समझते हैं कि हमारा आइडिया ही बेस्ट है, तो हम उसमें चेंज करना नहीं चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने का टाइम दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके आइडिया में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो फट से उसको मॉडिफाई करिए या उसको किल करिए, नए आइडिया में काम करिए। 3 से 6 महीना इनफ है आज के टाइम में, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं अपने आइडिया में। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था उसको क्विकली चेंज करिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। आप उस आइडिया में मॉडिफिकेशंस करिए, उसको फिर लॉन्च करिए, फिर कस्टमर्स के रिव्यू लीजिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइडिया को बढ़ा सकते हैं। एंड डोंट पुट ऑल द मनी देयर, डू अ पायलट रन। हर चीज, आपका कोई भी आइडिया उसका पहले पायलट करो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है उसके 2 पीस बनाओ, अपने आसपास वालों में वो भेजो, उसका फीडबैक लो, उसका रिव्यू लो। एंड द क्विकेस्ट वे टू टू हैव एन आइडिया फॉर अ स्टार्टअप इज टू स्टार्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको एजुकेशन में जाना है तो अपने एजुकेशन गो आस्क योर टीचर्स व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस। आपको अपॉर्चुनिटी लोगों की प्रॉब्लम्स में ही मिलेगी, दैट इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आप बैठकर नहीं सोच सकते कि मैं आज ये याद कर लेता हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि लोग एक्चुअली क्या प्रॉब्लम सॉल्व, आप लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। एंड या डू अ पायलट, जैसे कि शुभम ने बताया कि 3 महीना, या बट डोंट पुट ऑल योर मनी इन इट। Next question is, I have an idea, but I don't have a team. How can I build the team? How to further after ideation stage? सर ये इशू मेरे साथ आया था, ये सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, फ्रॉम सिविल टू आईटी, एक टीम क्रिएट करना, दैट टू एफिशिएंट टीम, जिस और स्टार्टअप के साथ टीम का बनना मतलब कि ऐसे लोग ढूंढना जो कि कम बजट में काम करे, एंड दैट टू वो मोटिवेटेड हो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़े रहे, क्योंकि टीम आपने अगर ले भी आना तो बहुत जल्दी वो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि कम बजट में आपके साथ मोटिवेटेड होकर लंबे टाइम के लिए काम करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम ढूंढना बहुत टफ टास्क है। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद, यू कैन फाइंड इंटर्न्स, यू कैन डिपेंड्स ऑन योर नीश बेसिकली क्या है। जैसे अगर आपका आईटी है तो यू कैन इनिशियली गो विद फ्रीलांसर्स जो कि कम बजट में आपको मिल सकते हैं, नियरबाई फ्रीलांसर्स ज्यादा कन्वीनियंट। अगर कोई प्रोडक्ट है उससे डिपेंड करता है जस्ट कि आइडिया है, टीम नहीं तो फाइंड टीम ना, अपने को फाउंडर बनाइए। कोई अगर आईटी वाला आपको चाहिए, टेक वाला, उसको फाउंडर बनाइए, अपने थोड़े से 5% 10% आप दे सकते हो उनको, ताकि वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। परसेंट शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनिशियली टीम नहीं मिल रही है, इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड टीम है, आप अगर ढूंढेंगे तो मिलेगी। पैसा नहीं दे सकते तो इक्विटी शेयर की जा सकती है। सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो, देन अगर आप कंफ्यूज हो तो बात ही करें। स्टार्टअप इज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। ऐसे कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले आप खुद मोटिवेटेड होइए, देन आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। टीम मेंबर्स, लोगों से बात करिए, उनको मोटिवेट करिए। आपका गोल अगर सेम होगा डेफिनेटली वो टीम में वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल यू कैन फाइंड। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी, ठीक है, मेरे साथ बेसिकली कोई नहीं था। आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, आई टेस्टेड माय आइडिया, वो वर्क करने लगा, आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ। तो जिन लोगों को वो चीज अच्छी लग रही थी, व्हिच आई एम डूइंग इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, सो उन लोगों ने ऑटोमेटिकली दे अप्रोच्ड मी दैट कि अंकित आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल द आईटी, मैं आईटी का इस प्रोडक्ट को इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। देयर वाज अनदर गाय हु वाज आवर को-फाउंडर आकाश, जो कि उसने कहा कि आई कैन डू द सेल्स पार्ट एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस। तो जब आप निकल पड़ते हो ना रास्ते में, तो लोग आपको ज्वाइन करते जाएंगे और वो टीम अपने आप बिल्ड होती जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम ही टीम्स ढूंढनी है, करना है। जैसे कि शिवांगी ने जो
पिछला जो क्वेश्चन था कि आइडिया को टेस्ट कैसे किया जाए, तो जब आप प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं ना, उसी में ही आपको पता चल जाएगा कि हु आर गोइंग टू बी योर टीम। और आई थिंक अगर आइडिया अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ज्वाइन करने लग जाएंगे। तो इट्स जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन। यार एक उसमें जो ऐड जो करना चाहता हूँ मैं इज बेसिकली आपको जो टीम चाहिए ना, इट्स नॉट जनरली सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, मैं भी एक सोलोप्रेन्योर हूँ अभी तक, बट always it's always good to have a team of 3 as founders. Why I'm saying that is, or any odd number. Odd number इसलिए अच्छा रहता है कि कभी अगर deadlocks होते हैं तो आपका जो final बंदा है he can take a decision. So all 3 of them or 5 of them has to be completely onboarded on the idea. और ये मत सोचो कि इक्विटी यार में 5% देनी है, 10% देनी है। अगर बंदा अच्छा है और 33% देनी है तो डोंट ओवरथिंक इट। किसी भी फाउंडर के पास जो भी आज सक्सेसफुल है, वेदर इट्स बायजूस, वेदर इट्स पॉलिसी बाजार, वेदर इट्स एनीवन एल्स, किसी भी फाउंडर के पास 2 डिजिट में शेयर्स नहीं होते, सबके पास 10% से कम होते हैं इन अ मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी वैल्यू जो होती है ना वो करोड़ों में होती है। सो फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट, जैसे फ्लिपकार्ट के बंसल्स थे, उनका जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा तो जो बंसल्स की शेयर वैल्यू थी वो 750 करोड़ थी जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। दैट्स वेयर द वैल्यू लाइज, और उनके पास 2 से 5% से शेयर से ज्यादा नहीं है। सो डोंट ओवरथिंक ऑन कि मेरे को कितना शेयर देना पड़ेगा कंपनी में। अगर अच्छे लोग हो, सब लोग तीनों चारों हो, साथ में बैचमेट्स रहे हैं, तीनों को आइडिया पसंद है, तीनों को उस पर लग के काम करना है, जस्ट गो फॉर इट, 3 वे स्प्लिट करो, आगे बढ़ जाओ। डोंट ओवरथिंक कि मुझे कितना देना पड़ेगा या क्या देना पड़ेगा। और टीम बिल्ड करनी है तो सबसे पहले तो आपको खुद आगे मोटिवेट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे। इवन तो आपको भी अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आपने अपने आप को बिल्ड नहीं करा तो आप अगर टीम जैसे कि हायर भी कर लेते हैं, इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, तो आप उन्हें बता नहीं पाओगे कि क्या काम करना है या आप क्या काम करोगे। So you also have to increase your skills in order to get to the success point. Thank you so much. सारे एक्सपर्ट्स ने इतने अच्छी चीजें मोटिवेट किया है हमारे स्टूडेंट्स को। और हमारे आईआईसी के मेंबर कन्वेनर हैं डॉक्टर दिनेश कोहली सर, ये वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। सर कोहली सर। लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर बस दे के उसके बाद we don't want to leave any student with any doubt. Sir, how to overcome the industry gap between organization and students? How to overcome industry gap between organization and students? The only way is skill development. Only way of doing it is skill development. अपने skill को enhance करो। जो आप किताबों में पढ़ते हो वो किताबों तक होता है, और when you come to an industry or organization, you have to start implementing those ideas, those bookish, वो जो आपकी book की जो knowledge है वो आपको implement करनी है। उस implementation में ना you need to go practical, तो वो skill development से ही होगा। Start जैसे आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ते हो, there are lot of certification courses available, जैसे ये अपना क्वालिटी के 5 सिग्मा जो अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं। नहीं कर सकते तो कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, वहां जाके काम करना, पार्ट टाइम काम करना, दिन में 3 घंटे काम करो, मगर सीखो। ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज में हमको सिखाएंगे, प्रोफेसर हमको सिखाएं, नहीं यार, वो उनको नहीं स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप आपको करना है, आपको काम करना है, आपको आगे चीजें करनी है, तो आप खुद निकलो और काम करो, तभी आप सीख पाओगे। फाइंड द राइट मेंटर, यानी लोगों से जिससे आप बात कर सकते हो। यानी आपको अगर बैंकिंग में जाना है तो आपको आप बेसिकली ऑल ऑफ यू आर इंजीनियर्स, सो किसी को फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है, किसी को बैंकिंग का कोई नॉलेज नहीं है, किसी को इंश्योरेंस का कोई, टैक्सेशन, गारमेंट्स, रिटेल, फैशन, मीडिया, किसी को कुछ नॉलेज नहीं। सो अगर इफ यू आर एनीवेयर, ट्रैवल टेक, तो जिस भी एरिया में तुम जा रहे हो, यू नीड टू हैव अ मेंटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री हु कैन गाइड यू कि तुम्हारा आइडिया कितना इम्प्लीमेंटेबल है। आज की डेट में अगर तुम चाहोगे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं जाके कुछ भी प्रोडक्ट बना दूँ, वो चल जाएगा, जब तक तुम उस चीज को किसी से वैलिडेट नहीं कराते हो जो उस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू बस गो देयर एंड देन also have a continuous engagement with that person.
जिस भी फील्ड में जा रहे हो, गेट अ पर्सन फ्रॉम दैट फील्ड एंड आस्क हिम टू बी योर मेंटर। अगर वो 1.5% इक्विटी पे काम करता है तो 1.5% इज वर्थवाइल। देना भी है, 2% है, 4% है, देना वर्थवाइल है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाएगा उसके लिए। या वो बोलता है यार तुम्हारे पास पैसे हैं, 25,000 रुपए दे दो मुझे महीने के, मैं एंगेज हो जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो पैसे दे दो। But get that advice right there, because that's the most important thing which you will get in initial stage. And even though it will add क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा परसेंटेज से आप ग्रो करोगे इसी चीज पे, या आपके जो इनिशियल हिकअप्स हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। हाँ। So ma'am, I think that was the last question. I think they've answered all. And if there are any queries, ma'am, you can we can share the BNest email ID. Rajesh can share. And if they have any queries, they can come down to BNest. We can have a one-on-one discussion. BNestBPL@gmail.com. Right. लिख दो यहाँ। Right. YouTube Police. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. So good afternoon, and I think thank you very much for all the team members which are from the BNext, and as I can see within the very short time they are ready for giving such type of interactive session. Mr. Mahendra Panchal ji, Mr. Ankit Yadav, Mr. Ankit Thakur, Mr. Shubham Sharma, Ms. Shivangi Jain, and Rajesh Ranjan ji, and it was a very interactive session you have conducted here, and I think you have guided our students at each and every step which is required for a startup, starting from the idea and the teamwork, business model, what is the funding required, as well as the timing. But in each and every step you have given the this detailed discussion as well as guidance. We have also interacted our students. Definitely our students are also working on the different projects, and some of the projects they are also carried at the national level within the MHRD level. One project is also carried over in the National Innovation Contest. So I think in short it was a very wonderful session, and thanking you all the experts from the BNest. Definitely our students will contact you, and we will try to visit your BNext your incubator center also. We are also planning in that. I am being the convener of IIC team. Our team is working on the different activities, not only startup, entrepreneurship, IPR, innovation, and we are working together with the team of the 40 students as well as around 15 faculty members. So with this, I thanks you all. We are also having a certificate for all the experts, but I'm sorry to say it was prepared at the time. We will send you by the mail. And thank you for giving time here and giving benefit to our students in this interactive session. And I also would like to thanks to all the faculty members of the institute, branding team, faculty member from the institute, as well as all the students. Thanks for giving time and making this event successful. Also thanks at the last to Professor Shukla ma'am who has coordinated this event. Thanks to all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. राजेश सर आप मीटिंग लीव कर दीजिए, क्योंकि आप ही होस्ट, आप एंड कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है।